Hello viewers, I am Deepthi. A latest update for you. Recently, CISE has issued a letter covering two important points. First point is Class 12 syllabus for ISC year 2024 examination and for Class 11 academic year 2023 and 24 has been revised for 13 subjects, and these subjects are physics, chemistry, biology, commerce, accounts, history, geography, political science, sociology, psychology, legal studies, mathematics, and computer science. And second point is bifurcation of ICSE and ISC literature in English from the examination year 2024 onwards. Therefore, syllabus is prescribed separately for class 9th and 10th at ICSE level and class 11th and 12th at ISC level. However, for the ICSE 10th and ISC 12th board examination, only the syllabus prescribed will be tested. Today we are going to discuss ISC Class 11 Mathematics revised syllabus given by Council recently. As you know, paper has two parts. Paper 1 theory 3 hours of 80 marks and paper 2 project work 20 marks. And paper 1 theory is of 80 marks, out of which section A consists 65 marks and either section B or section C of 15 marks. And further bifurcation of marks is sets and function of 20 marks, algebra of 24 marks, coordinate geometry 8 marks, calculus 6 marks, statistics and probability 7 marks. And in section B, which is of 15 marks total, conic section 7 marks, introduction to 3D geometry 5 marks and mathematical reasoning 3 marks. And section C, statistics 5 marks, correlation analysis 4 marks, index number and moving averages 6 marks. So this is of total 80 marks. Starting from section A and unit 1, which is sets and functions. From chapter sets, the deleted topic is practical problems on union and intersection of 2 and 3 sets. ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है, बाकी पूरा चैप्टर इंटेक्ट है. सेकेंड इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. इसमें भी हमने बाकी पूरा चैप्टर करना है. जो रिवाइज्ड या रिड्यूस सिलेबस है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें 1 to 1, 1 to many, on to and into ये टॉपिक्स हमने नहीं करने हैं. इसके अलावा स्केचेस ऑफ ग्राफ, ग्राफ किस किस के डिलीट हुए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, लॉगरिथमिक फंक्शन के, मॉडुलस फंक्शन के, स्टेप फंक्शन के और रैशनल फंक्शंस के, ये ग्राफ भी आपने नहीं करने हैं. फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स एंड आर्क लेंथ्स, ये पूरा टॉपिक एज इट इज रहेगा, कुछ डिलीटेड नहीं है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रहेगा, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स एज इट इज रहेगा. इसमें डिलीटेड टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो पूरा का पूरा ही रिड्यूस हो गया है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. इसमें भी हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक ही डिलीट हुआ है, जिसमें आप साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला ये सब करते थे, ये सब अभी नहीं है. Now coming to unit 2, which is algebra. First chapter is principle of mathematical induction. This entire chapter is deleted. Next is complex number. The topic reduced from this chapter, complex number, is locus questions on complex number. This topic is reduced. And then triangle inequality. This topic is again reduced. These two topics are reduced from chapter complex number, triangle inequality and locus questions. Third chapter is quadratic equations. Here quadratic expression ax square plus bx plus c equal to 0 when plotted on a graph, it means it is a parabola. ये topic excluded है. It means graphical representation of this equation on a graph, parabola, वो topic आपका reduce किया गया है. Next is inequalities. The topic excluded from this chapter inequalities is, first is graphical representation of linear inequality in two variable. ग्राफ पे उनको represent नहीं करना है. Next is graphical method of finding a solution of system of linear inequalities in two variables. तो पूरा जो system का solution है वो वाला भी two variable में हमने नहीं करना है. Next chapter is permutations and combinations. इस chapter में कुछ भी deleted नहीं है, entire topic आपका आ रहा है. Next is binomial theorem, कुछ भी deleted नहीं है, पूरा chapter आ रहा है.
नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें आइडेंटिफाइंग सीरीज एज a dot g dot p when we substitute d is equal to 0 then we get gp and when we put r is equal to 1 then we get ap। ये टॉपिक आपका रिड्यूस किया गया है, बाकी पूरा चैप्टर इंटेक्ट है। तो अलजेब्रा में से जो रिड्यूस टॉपिक है वो आपके सामने लिखे गए हैं। जो पूरा चैप्टर डिलीटेड है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, बाकी जो रिड्यूस टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जिन चैप्टर में से कुछ भी नहीं कटा इसमें वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है और बायनोमियल थ्योरम है, जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। Now we will talk about unit 3, which is coordinate geometry. Here first chapter is straight lines. There no deleted topic is there. It means entire chapter remains as it is. Means basic concepts of point and their coordinates इस topic में कुछ भी delete नहीं किया गया है. Straight lines as it is रहेगा. Next है हमारा circles. Circles में भी बाकी सारे topics हैं, सिर्फ जो टॉपिक काटा गया है वो है टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स में कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये नहीं करना एंड इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये दोनों टॉपिक हमने रिवाइज सिलेबस में नहीं देखे हैं। इट मींस ये आपके रिड्यूस किए गए हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट विच इज कैलकुलस। कैलकुलस में हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसमें लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये टॉपिक आपका डिलीट किया गया है। जो भी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के साथ लिमिट्स हैं वो हमें नहीं करनी है। बाकी डिफरेंशिएशन में हमारा कुछ भी रिड्यूस टॉपिक नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आगे भी बहुत काम की चीज है, तो बिल्कुल भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 5, तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से आपका जो टॉपिक डिलीट किया गया है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस। इक्वल मीन रहेगा लेकिन वेरिएंस अलग अलग रहेगा, तो ये टॉपिक हमारा डिलीट किया गया है। और दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट, मीन तो रहेगा लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये टॉपिक हमारा स्पेशली सिर्फ मीडियन को हाईलाइट किया गया, मीडियन नहीं करना हमने। नेक्स्ट है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा एज इट इज रहेगा। सो यूनिट 3 में से स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। सर्कल्स में से ये 2 टॉपिक डिलीट किए गए हैं। कैलकुलस में हमारा सिर्फ एक टॉपिक लिमिट्स का एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के साथ डिलीट किया गया, बाकी डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स में ये 2 चीजें डिलीट की गई हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस है इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएंस के साथ, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये टॉपिक डिलीट किया गया, और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। विद दिस हमारा सेक्शन ए ओवर हो गया। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, यूनिट 6 विच इज कोनिक सेक्शन। Here first chapter is parabola and the deleted topics from parabola is equation of a parabola when the vertex is shifted to another point, say alpha or beta, while the axis remains parallel to the x-axis or y-axis, x-axis or y-axis. Here y minus beta whole square is equal to plus minus 4a x minus alpha, or x minus alpha whole square is equal to plus minus 4a y minus beta. This whole topic is deleted from parabola. Rest whole chapter is there in your syllabus. Next chapter is ellipse. From ellipse, again equation of the ellipse when the vertex is shifted to another point, say alpha beta, while the axes remain parallel to the x-axis or y-axis. Here x minus alpha whole square upon a square plus y minus beta whole square upon b square is equal to 1. इस तरह की इक्वेशन जो है ये टॉपिक डिलीट किया गया है एलिप्स में से। नेक्स्ट चैप्टर इज हाइपरबोला। डिलीटेड टॉपिक्स हियर आर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टॉपिक यहां से डिलीट किया गया है, सॉरी यहाँ पर प्लस है। सो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सेम ये इक्वेशन रहेगी इज इक्वल टू 1, ये टॉपिक हाइपरबोला से डिलीट किया गया है। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, ये छोड़ दिया गया है, डिलीट किया गया है। केस 1 और केस 2 दोनों टॉपिक्स इसमें से हमने नहीं करने हैं। और इसमें अगर एक चीज और हाईलाइट करूंगी तो इसमें आएगा रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। यही इक्वेशन जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ab।
ये होता है अगर रिप्रेजेंट्स इलिप्स इफ h square is less than AB and represents a hyperbola if h square is greater than AB if ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पूरा इक्वेशन जो है ये डिलीट किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द कोनिक्स, जो भी टेंजेंट वाला टॉपिक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो टॉपिक इसमें से डिलीट किया गया है हाइपरबोला पोर्शन में से। कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट ऑफ सेक्शन बी, इट इज इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें से आपके पास पूरा चैप्टर एज इट इज है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। एंड लास्ट यूनिट 8 इज मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी पूरा चैप्टर एज इट इज है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। बस आपके पास पैराबोला में एक इक्वेशन इस टाइप की जो है वो डिलीट की गई है, एलिप्स में भी इस टाइप की, हाइपरबोला में एक इक्वेशन इस टाइप की डिलीट की गई है, और केस 1 केस 2 इसके दोनों जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये दोनों टॉपिक डिलीट किए गए हैं। बाकी दोनों यूनिट के जो 7 है और 8 है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, एंड फर्स्ट यूनिट फ्रॉम सेक्शन सी इज स्टैटिस्टिक्स, and the deleted topic from statistics is deciles, percentiles of grouped and ungrouped data, ये टॉपिक डिलीट किया गया है। बाकी मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड, दोनों डाटा का ग्रुप का भी अनग्रुप्ड का भी हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस, इसमें स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये एक टॉपिक डिलीट किया गया है, बाकी सारा टॉपिक इसका एज इट इज रहेगा। लास्ट यूनिट हमारा सेक्शन सी का है इंडेक्स नंबर्स एंड मूविंग एवरेजेस, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये एज इट इज पूरा का पूरा आएगा आपके सिलेबस में। ये हमारा 80 मार्क्स का पेपर का समअप था। अब इसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें यानी प्रोजेक्ट वर्क की बात करेंगे तो वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें ओवरऑल फॉर्मेट आपका 1 मार्क का रहता है, कंटेंट आपका 4 मार्क्स का होता है, फाइंडिंग्स 2 मार्क्स एंड वाइवा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट 3 मार्क्स। तो टोटल 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के दिए जाते हैं आपको। तो आपको कंप्लीट करने होते हैं 2 प्रोजेक्ट, एक सेक्शन ए में से और एक या सेक्शन बी या सेक्शन सी, जो आपने ऑप्ट किया अकॉर्डिंग टू कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको इस तरह से अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है और आप मैथ्स अच्छे से कर फिर 12th क्लास में चले जाएंगे। विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज वीडियो। आपका आईएससी मैथमेटिक्स का रिवाइज सिलेबस हमने अभी डिस्कस किया है। सून आई विल अपलोड वीडियो फॉर रिवाइज सिलेबस फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।